بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچہ دیا، اور یہ بچہ ان کو کافی دعاؤں کے بعد ملا تھا۔ بڑھاپے میں ملا وہ پیارا بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ کے لیے آنکھوں کا نور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیوی بچے دونوں کو عرب کے اس ویران علاقے مکے میں چھوڑ کر واپس فلسطین لوٹ جاؤ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ بیوی ہاجرہ مکہ کے اس ویران علاقے میں اکیلے زندگی گزار رہی تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کر کے رویا کرتی تھی۔ ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب لگ بھگ 13 سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے سے ملنے کے لیے گئے۔ پھر ایک رات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو اچانک انہیں خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ یہ خواب دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور صبح 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے۔ اگلے دن پھر سے وہی خواب آیا تو دوسرے دن بھی 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دی۔ تیسرے دن پھر سے وہی خواب آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بیٹے اسماعیل کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ گیا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ شہزادے کو تیار کر دیتی ہے، مانگ سجاتی ہے، تیل لگاتی ہے، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہے۔ جب بیٹا تیار ہو جاتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو لے کر مکہ کی اس ویران علاقے کی طرف اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ میرے دوستو، اس بوڑھے باپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ جب ان کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ آج اتنے سالوں کے بعد میں اپنے بچے اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اگلے ہی پل دوسرا خیال آتا ہوگا کہ ارے میں تو اسے ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ بوڑھا آدمی تو ایک مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اور یہ باپ اللہ کے حکم کے خاطر اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے ان کے دل پر کیسی چھریاں چل رہی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چلتے جا رہے تھے۔ مینا وادی مکہ سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھلتے کودتے بہت خوشی خوشی اپنے ابا کے ساتھ جا رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا وادی کے قریب پہنچے تو اچانک شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بہکانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، اتنے سالوں بعد تمہیں بیٹا ہوا ہے اور تم اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی، شیطان کو مارا اور کہا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کے حکم پر قربان کر دیتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ اچانک شیطان پھر سے سامنے آ گیا اور حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے دوست کی دعوت میں، ان کے دوست نے بلایا ہے، اسی دعوت میں ہم جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکر اٹھا کر شیطان کو مارا۔ ان باپ بیٹوں کی یہ ادا
अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया कि आज भी हज करने वाले लोग जब तक मीना वादी में शैतान की उन 3 जमरात को साथ साथ कंकरी ना मारे तब तक उनका हज पूरा नहीं होता। जब शैतान इन बाप बेटों की तरफ से मायूस हो गया तो वो एक औरत की शक्ल में आकर जल्दी से हजरत हाजरा के पास उनके घर पहुंचा और कहने लगा कि हाजरा, क्या तुझे पता भी है कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बच्चे को कहाँ लेकर गए हैं? तो बीवी हाजरा ने जवाब दिया कि हाँ, वो तो मेरे बच्चे इस्माइल को दावत पर ले गए हैं। इस पर शैतान ने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे बच्चे इस्माइल को जिबा करने के लिए ले जा रहे हैं, इसीलिए जल्दी से जाओ और अपने बच्चे को बचाओ। बीवी हाजरा ने जैसे ही शैतान की ये बातें सुनी तो वो शैतान से कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप 90 साल का रहमदिल इंसान जो कि अल्लाह की तरफ से एक नबी है, वो कैसे अपने मासूम बच्चे को जिबा कर सकता है? तो शैतान ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे शौहर को हुक्म दिया है कि अपने बच्चे इस्माइल को मेरी खातिर जिबा कर दो। ये सुनकर बीवी हाजरा का दिल मजबूत हो गया और वो शैतान से कहने लगी कि अगर अल्लाह का हुक्म है कि मैं एक इस्माइल तो क्या, अगर अल्लाह ने मुझे 1000 बेटे भी दिए होते तो मैं सबको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। बीवी हाजरा का ये जवाब सुनकर शैतान यहाँ से भी मायूस हो गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मीना वादी में पहुँचे तो हजरत इस्माइल से कहने लगे कि बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान आप बताएं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें जिबाह कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ऐसी बात सुनकर दुनिया का कोई भी लड़का अपने बाप से लड़ जाता और कहने लगता कि अब्बा जान, आप एक ख्वाब के खातिर क्या मुझे जिबाह कर दोगे? ये गलत है। लेकिन उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनहरे लफ्जों से लिखने वाला है। कुरान ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस जवाब को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल से कहा कि ऐ बेटा, मुझे अल्लाह की तरफ से ख्वाब में दिखाया गया है कि मैं तुझे जिबाह कर रहा हूँ, तो ऐ मेरे बच्चे, तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप देर ना करिए, बल्कि जिबाह तो क्या, जो भी करना है करिए, अल्लाह का हुक्म पूरा करिए। और ऐ अब्बा जान, आप मेरा हाथ पैर बांध दें ताकि ऐसा ना हो कि जिस वक्त आप मुझे जिबाह करें मेरा हाथ पैर आपको लगकर आपको तकलीफ ना हो। अब्बा जान, आप मुझे औंधे मुंह लिटाकर जिबाह करना, क्योंकि मुझे डर है कि मेरा चेहरा आपके चेहरे की तरफ हुआ और आप मेरी गर्दन पर छुरी फेरेंगे तो कहीं बेटे की मोहब्बत में आपका हाथ कांप ना जाए और अल्लाह का हुक्म टूट ना जाए। इसीलिए अब्बा जान, आप मेरा मुंह जमीन की तरफ कर देना और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना ताकि अल्लाह के हुक्म में कोई कमी ना रहे। अपने बच्चे इस्माइल की ऐसी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और रस्सी लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांधने लगे। मेरे दोस्तों, आप उस वक्त का नक्शा एक बार अपने जहनों में खींच कर देखिए कि एक बूढ़ा बाप कि जिसके जिस्म में जान तक ना बची हो, कमजोरी की ये हालत हो कि डंडा लेकर चलता हो और बुढ़ापे का एक ही सहारा एक प्यारा सा बच्चा हो कि जो 60 सालों की दुआओं के बाद मिला हो, तो वो बूढ़ा बाप कैसे अपने इस बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाएगा। लेकिन आज मीना की वादी में मंजर ही कुछ और था कि ये बूढ़ा बाप अपने कांपते हाथों से अपने इस बच्चे के हाथ पैर बांध रहा है, जैसे कि बकरे को जिबाह करते वक्त उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल के हाथ पैर बांधे और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। हाथ में वो तेज धार छुरी ली और अपने बच्चे इस्माइल के पीठ पर अपना घुटना रखकर बाल पकड़े और छुरी गर्दन पर रखते हुए आसमानों की तरफ नजर उठाई और कहने लगा कि ऐ अल्लाह, क्या आप मुझसे नाराज हो गए हैं? क्या आप समझते हैं कि मेरे दिल में मेरे बच्चे इस्माइल की मोहब्बत आपसे ज्यादा बैठ गई है? तो ऐ अल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत के लिए एक इस्माइल तो क्या, अगर तूने मुझे 1000 इस्माइल भी दिए होते तो सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। इतना कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
छुरी चला दी। मेरे दोस्तों, आसमान के सारे फरिश्ते कभी एक साथ नहीं रोए, लेकिन दो मौके ऐसे हैं कि जब आसमान के फरिश्तों के भी चीखें निकल पड़ी और सब रोकर अल्लाह से फरियाद करने लगे। पहला मौका यही था कि जब इस 92 साल के बूढ़े बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर छुरी रखकर अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, क्या तू मुझसे नाराज हो गया है? तो ये सुनकर आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। और दूसरा मौका जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादी में काफिरों ने पत्थरों से मारा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेबसी देखकर आसमान के फरिश्तों के भी चीखें निकल पड़ी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल के कहने पर आंखों में पट्टी बांध ली थी, इसीलिए जिस वक्त वो छुरी चला रहे थे तो पता नहीं वो छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन को काट नहीं रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरा जोर लगाकर अपने बच्चे इस्माइल की गर्दन को काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छुरी है कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपने बच्चे इस्माइल से कहा कि बेटा ऐसे ही लेटे रहना, मैं छुरी तेज करके लाता हूँ। शायद छुरी की धार में कुछ कमी रह गई है, लेकिन अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया था कि ऐ छुरी, कुछ भी हो, तुझे इस्माइल की गर्दन पर नहीं चलना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और सामने एक पत्थर के पास जाकर छुरी तेज करने लगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छुरी तेज करता देख रहे थे। मेरे दोस्तों, कुर्बानी के बकरे के लिए उलमा इकराम ने एक मसला लिखा है कि जब बकरीद के दिन बकरे को जिबा करो तो उसके सामने छुरी तेज ना किया करो कि कहीं छुरी को तेज होता देख बकरे को तकलीफ ना हो। और यहाँ मीना के वादी में तो मंजर ही कुछ और था कि एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे को जिबा करने के लिए छुरी तेज कर रहा है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूम नजरों के साथ अपने अब्बा को देखते जा रहे हैं। छुरी तेज करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर से अपने बच्चे इस्माइल के पास आए, आंखों पर पट्टी बांधी और पीठ पर पैर रखकर गर्दन पर छुरी चलाने की तैयारी करने लगे। उधर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल, जल्दी से जन्नत से एक भेड़ लेकर आओ और इस्माइल की जगह पर उसे लिटा दो, क्योंकि मेरे इब्राहिम ने आज फैसला कर लिया है कि वो मेरी खातिर अपने बच्चे इस्माइल को जिबा करके रहेगा। फिर जब छुरी चलाने की कोशिश करने लगे तो अचानक छुरी गर्दन पर चलने लगी और हाथों में खून लगने लगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की धड़कनें तेज हो गई, आंखों में आंसू भर आए और ख्याल आने लगा कि मेरे बच्चे इस्माइल की गर्दन कट गई है और वो तड़प रहा है। लेकिन अल्लाह के हुक्म के खातिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी ना रोकी और बराबर गर्दन काटते रहे। जब यकीन हो गया अब गर्दन पूरी तरह से कट चुकी है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे हटे और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी हटाई तो सामने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके बच्चे इस्माइल के साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं और सामने एक जिबा किया हुआ भेड़ पड़ा है। ये मंजर देख हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कुछ पूछते कि अचानक चारों तरफ से एक आवाज सी गूंजने लगी और अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहा, ऐ इब्राहिम, हकीकत में तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हम इसी तरह नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।